Dear students of class 11th, let us today again introduce arrays. ARRAY, array. What is array? Since we discussed memory variables of many types like character, and where we can store the alphabets, name, etc., address, etc. Integer variable, which occupies 2 bytes, where we can store numbers like age, roll number, etc. Then we discussed float. Already we have discussed in the classroom float. Float means where we can store fractional numbers. So these were the variables which we discussed earlier. Let us today discuss a variable which is not actually a variable, which is a collection of variables of similar type. Suppose we have stored the marks of 10 students in a memory. So we know we are storing the marks which are of numeric type. So we need the same memory type variables to store 10 variables. Suppose we have stored the marks of 10 students, so we have to declare 10 individual variables for that. Now the new concept came to rescue us. We did not declare 10 different variables, but we can declare an array of 10 locations which can store 10 memory values, 10 values which can store of similar types. So what is an array? Actually, it is a big memory variable which can store many data at the same time, but of the same type. So the array is a similar type of data collection name. यानी एक ही टाइप के जो डेटा हम इसमें रख सकते हैं, इसमें हम एक कैरेक्टर और एक इंटीजर नहीं रख सकते हैं और फ्लोट नहीं रख सकते हैं. अगर हमने फ्लोट इसको डिक्लेयर किया हुआ है तो फ्लोट ही इसमें स्टोर कर सकते हैं. अगर हमने इसको ये किया है स्टोर डिक्लेयर किया है एज इंटीजर टाइप, वी कैन स्टोर एनी इंटीजर वैल्यूज इन दिस एरे. So suppose what is array? The definition of array is similar type of data collection name. That is, it is a collection of same data type elements. An array is a group of related data items. Means related means जो same होंगे, एक ही type के होंगे. Which share common name. उनका एक ही name होता है. It is a set of homogeneous data. What is homogeneous data? Homogeneous data means same data of same type. E.g. a list of marks. You know the marks जो है ना वो एक ही टाइप का डाटा है, यानी न्यूमेरिक टाइप का है. तो दिस इज होमोजेनियस डाटा. द लिस्ट ऑफ marks of 10 students can be grouped as shown. देखो we will declare an array, उसका नाम हम marks ही रखेंगे, but at the same time we have to declare कि how many values we have to store in it. Suppose हम 10 बच्चों के marks इसमें रखना चाहते हैं, तो we will write mark, we will declare integer marks. integer टाइप का होगा ये हमारा array. तो marks इसका नाम रहेगा और हम within brackets लिखेंगे 10. It means this memory variable is not a simple memory variable, but it is an array. It can store 10 these values at the same time of same type. So जो marks है, अब ये this is the question. अब जब एक ही नाम है तो हाउ वी कैन एड्रेस और हाउ वी कैन रेफर द डिफरेंट लोकेशंस. देखो ये ऐसा बनता है जैसे आपने देखा डब्बा जैसा, इसमें ऊपर 10 लोकेशंस बनते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन रेफर इंडिविजुअल लोकेशंस विद इन द एरे. अब इस जो सिंगल डायमेंशन एरे ऊपर है, ये आप देख रहे हो रो टाइप का है, इसमें 10 सेल्स है, 10 लोकेशंस है. अब इन लोकेशंस को हम कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे रेफ़र करेंगे, कैसे पॉइंट आउट करेंगे. तो इसके लिए एक हमारे पास एक ये होता है तरीकाकार. जो हमारा एरे है उसका नाम हमने मार्क्स रखा है, तो मार्क्स द नेम ऑफ द एरे, और फिर हमने सबस्क्रिप्ट में 10 लिखा है, मीन्स 10 लोकेशन इसमें होंगी. तो दिस इंडिविजुअल लोकेशंस कैन बी रेफरेंस्ड बाय द सबस्क्रिप्ट और वी कैन से द इंडेक्स. जो पहली लोकेशन है उसका इंडेक्स है 0, तो सेकंड लोकेशन है इसका यानी 0 से स्टार्ट होता है. यू हैव टू रिमेंबर इट. The first location, the address of the first location, the index of the first location starts with 0. then second का 1 है, इसी तरह थर्ड का 2 है, फोर्थ का 3 है, इसी तरह लास्ट जो होगी
उसका जो इंडेक्स होगा दैट विल बी 9 नॉट 10. सो वी कैन रेफर, देखो जब हम मार्क्स 0 कहीं पर लिखेंगे, मार्क्स और ब्रैकेट में 0 लिखेंगे इंडेक्स नंबर, इट मीन इज द फर्स्ट लोकेशन. जब हम मार्क्स फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1, इट मीन्स इट इज़ द सेकंड लोकेशन. जब हम मार्क्स फिर 2 लिखेंगे ब्रैकेट में, इट मीन्स इट रेफर्स टू द थर्ड लोकेशन. So the list shown in figure is an example of an array called marks, which is a set of 0 to 9 memory locations sharing a common name as marks. यानी इन तमाम लोकेशन का नाम क्या है, एक ही नाम है, common name, that is marks. और एक जैसे वेरिएबल्स, एक जैसे वैल्यूज स्टोर करेगा, यानी इंटीजर टाइप के, न्यूमेरिक टाइप के. सो as I have told you, we can refer these individual locations within an array with the help of the index number. The index number starts from 0 and it ends with 9 in this case. So the list, though the individual elements within an array can be designated by an integer known as subscript भी कहते हैं, index भी उसको बोल सकते हैं हम. So the marks of third student, जो है ना third student, उसका जो in the list will be referred, उसको हम कैसे रेफर करेंगे third student को. marks 3 हम नहीं लिखेंगे because the first location has been started with the index 0. So marks 2, it means this is the third location, यानी एक कम है, जो exact actual location है उससे एक कम है उसका index number. इस तरह 10वें बच्चे का जो मार्क्स जो है ना, हम उसको कैसे रेफर करेंगे, हम मार्क्स ब्रैकेट में लिखेंगे 9 नॉट 10 बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. तो यह है हमारा एरे का कंसेप्ट. द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन कॉल्ड by subscripted variables or index numbers. The syntax, अब हम syntax means grammar, how we can define an array, let us learn. ये आप देख सकते हो यहाँ पर, this is data type, यहाँ पर आप देखिए black bold है, data type array name size. यानी जब हम syntax means here the मतलब एक तरीका कार होता है हर एक लैंग्वेज का, जैसे इंग्लिश का एक ग्रामर होता है, इसी तरह हाँ C++ का एक होता है अपना पैटर्न, यानी कि हम वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट पैटर्न, जैसे हमें दिखाया गया है वैसे ही हमें चलना है. सो द इंडेक्स सिंटेक्स आर द ग्रामर ऑफ दिस, हाउ टू डिक्लेयर एन मेमोरी वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे इज दिस लाइक दिस. डेटा टाइप मीन्स एनी डेटा टाइप. यू कैन राइट हियर int मीन्स द इंटीजर टाइप, यू कैन राइट हियर float, or you can write here long integer etc, because you know already there are many variable memory types. So this is optional, not optional, this is why you have to write integer or float or something else. Then the array name you have to give by your choice. Then the size, यानी कितना आप array ये बनाना चाहते हो. जैसे अभी हमने मार्क्स जो बच्चों का है, 10 बच्चों के मार्क स्टोर करने थे, उसके लिए हमने इंटीजर टाइप का एरे बनाना है. सो वी हैव टू राइट int मीन्स इंटीजर टाइप, यानी जो भी वैल्यू इसमें स्टोर होगा दोज वैल्यूज विल बी होमोजेनस, सेम टाइप के होंगे. यानी डेटा टाइप के बदले हम int लिखेंगे, एरे नाम के बदले हमने ऊपर मार्क्स लिखा था, यानी इस पूरे एरे का नाम मार्क्स है. फिर साइज ब्रैकेट में साइज हमने 10 दिया था. द फॉलोइंग डेटा टाइप्स ऑफ एन एरे एलिमेंट्स इज नोन एज द बेस डेटा टाइप्स ऑफ द एरे. Following statement declares an array mark of base type integer and which can hold 10 elements. इंटीजर ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इंटीजर मीन्स जैसे ऊपर दिखाया गया है डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप हमने यहाँ पर इंटीजर दिया. अब एरे नेम हमने सिर्फ सिंपली ए दिया ही है. तो साइज हमने 10 दिया, यानी जो अब हमारा एरे बन गया है उस पूरे एरे का नाम ए है. सो उसकी टोटल जो है ना कैपेसिटी, उसकी 10 एलिमेंट्स हम उसमें स्टोर कर सकते हैं. 12 लोकेशंस हैव बीन क्रिएटेड. तो ये किस टाइप का एरे है, यानी किस टाइप का वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं, ओनली न्यूमेरिक टाइप. सो उसके बाद में अगर आपको कोई इंडिविजुअल विद इन दिस लाइन इंडिविजुअल सेल आपको रेफर करने हैं, तो वी हैव टू राइट द सबस्क्रिप्ट. टाइप ऑफ द एरे मेनली ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के एरे हैं, लीनियर एरे और नॉन लीनियर एरे. तो लीनियर मीन्स जो आपने देखा है लाइन जैसी, जो रो जैसा, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली सिंगल डायमेंशनल एरे. और आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं खड़ा भी, मतलब अभी हमने ये हॉरिजॉन्टल बनाया है एरे, वर्टिकल भी हम इसको बना सकते हैं. सो वी कैन कॉल बोथ, वेदर इट इज़ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वी विल कॉल देम लीनियर एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे. तो फिर 2 डायमेंशनल एरे यानी नॉन लीनियर एरे भी होता है, तो वी विल डिस्कस दैट वन लेटर ऑन. सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे.
थैंक यू।